भाई थर्मोडायनेमिक्स में हमें करना क्या था, एनर्जी रिलेटेड पैरामीटर्स निकालने थे। तो एनर्जी रिलेटेड पैरामीटर्स क्या होंगे कि भाई कितनी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें क्या चेंज है। अब एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है, एज हीट एंड वर्क। तो हीट एंड वर्क तो हमें निकालना आता है किसी भी सिचुएशन में। और एनर्जी स्टोर कैसे होती है, एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी, उसका भी चेंज हमें निकालना आता है। करेक्ट। तो एनर्जी रिलेटेड सारे पैरामीटर्स तो हमें निकालने आते हैं। तो व्हाई दे, एंड दैट वी कैन डू बाय फर्स्ट लॉ ओनली। तो व्हाई देयर इज एनी नीड ऑफ एनी अदर लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, उसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक ये टेबल है, ठीक है, इसमें एक ये ब्लॉक है मास m का, जिसकी स्पीड है v। ओके। और टेबल और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, हाफ mv स्क्वायर। फाइनली दिस ब्लॉक विल स्टॉप, करेक्ट, ड्यू टू फ्रिक्शन the block will stop. So what will be final kinetic energy of this block? 0. So what is loss in kinetic energy? What is loss in kinetic energy? कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। मान लो m को ले लेते हैं कुछ वैल्यू, m को ले लेते हैं 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, और v को ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, 16 जूल। करेक्ट। 16 जूल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। नाउ वेयर हैज दिस एनर्जी गॉन, कैन यू टेल मी वेयर हैज दिस एनर्जी गॉन। बोलो। Sir, heat, because due to friction, heat produces. ओके, तो कैन यू टेल मी हाउ मच हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। How much heat will be produced? Yes. Sir, 16 joules होना चाहिए ना? And by which law have you said it will be 16 joules? Sir, energy conservation law 1. That is first law. Energy Yes, sir. conservation law is first law. Yes. So by first law of thermodynamics, we can say energy can neither be created nor be destroyed. Correct? Yes, sir. So if 16 joules is the loss in kinetic energy, then heat energy produced will be 16 joules. Correct? Yes, sir. Now if I ask you a reverse of this, if there is the same table and same block kept at rest, okay, and I supply 16 joules of heat to this block, will the speed of this block become 4 meters per second? No, sir. Why? Am I violating first law? No, sir. But ये expansion के लिए use हो जाएगा ना block पे. अभी देखो, the question, try to understand the question. In the left side example, what we did? In the left side example, we did a process,
we did a change in which kinetic energy was converted to heat energy. Agreed? Yes, sir. And in the right example, we are trying to convert heat energy to kinetic energy. Yes, sir. We are not violating first law anywhere. First law says energy is neither created nor destroyed. We are neither creating nor destroying energy. We are just changing it from one form to another. In the Yes, sir. first example, we converted kinetic energy. In the second example, we are trying to convert heat energy to kinetic energy. But by our intuition, we know कि वो होगा नहीं, राइट साइड वाला काम होगा नहीं, हीट एनर्जी देने से ब्लॉक मूव नहीं करने लग जाएगा. करेक्ट? So this thought या this problem brings us the need of second law. First law says that energy is neither created nor destroyed. It just changes from one form to another. But by this example, we are seeing that energy cannot be converted from any form to any form we wish. We are seeing by this example that kinetic energy can be converted to heat energy, but heat energy cannot be converted to kinetic energy. Means by this we are clear that there are some allowable formats of energy जिसमें change होता है, and there are some disallowed changes also. Correct? तो सेकेंड लॉ हमें ये बताएगा कि किस फॉर्मेट से किस फॉर्मेट का चेंज अलाउड है और किस फॉर्मेट से किस फॉर्मेट का चेंज अलाउड नहीं है. सेकेंड लॉ हमें ये बताएगा कि कौन से प्रोसेसेस होंगे और कौन से प्रोसेसेस नहीं होंगे. सेकेंड लॉ हमें ये बताएगा कि कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे और कौन से केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे. करेक्ट? तो सेकेंड लॉ विल टेल अस द कंडीशंस फॉर feasibility, for spontaneity, for occurrence of a process or a reaction. तो सेकेंड लॉ क्यों नीडेड है ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो. सेकेंड लॉ की नेसेसिटी क्या है वो क्लियर है? ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती. काइनेटिक एनर्जी बोलो नील. आप कुछ स्पॉन्टेनियस कुछ आप बोल रहे थे सर, मेरे को समझ में क्या क्या आंसर है. क्या आप कुछ स्पॉन्टेनियसिटी कुछ आप बोल रहे थे. स्पॉन्टेनिटी मतलब होगा नहीं होगा. अच्छा अच्छा. So one thing which is clear to us by this example, that heat energy cannot या does not convert to kinetic energy. Kinetic energy यहाँ कैसे आएगी? By doing work against friction. Correct? So in a sense or in short, what we can say that work can be converted to kinetic energy. Yeah, work can be converted to heat, but heat cannot be converted to work on its own. तो सबसे पहला सेकेंड लॉ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं.
by studying heat engines. What is a heat engine? Heat engine is a device. It is a device which converts heat to work, which converts heat to work in a cyclic process. तो एक साइक्लिक प्रोसेस में हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम कहते हैं हीट इंजन। करेक्ट। इंजन का साइक्लिक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंजन को हमें बार बार यूज करना है टू कन्वर्ट हीट टू वर्क। ओके, so engine is a device, heat engine is a device which converts heat to work in a cyclic process. तो इंजन की एफिशिएंसी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एफिशिएंसी के लिए जनरली सिंबल लेते हैं हम थीटा, एंड एफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग इज डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। और इंजन से हमें आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट हमें चाहिए वर्क, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं? हीट। तो क्या हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ इंजन? वर्क डन बाय इंजन अपॉन heat given to engine. क्लियर? तो ये हो गई किसी भी इंजन की एफिशिएंसी। तो चलो थोड़ा वर्क करते हैं इस पे, जरा निकालने की कोशिश करते हैं एफिशिएंसी। तो भाई इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू टोटल तो साइकिल का 0 ही होगा। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो डेफिनेटली 0 रहेगी, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, डेल्टा यू टोटल अगर 0 है तो व्हाट वी कैन से क्यू टोटल पूरी साइकिल की हीट, क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल has to be 0. Agreed? फर्स्ट लॉ से तो W टोटल क्या आ गया यहाँ से? W टोटल आ गया हमारे पास माइनस ऑफ Q टोटल। सही है। और ये वर्क कौन सा है? दिस वर्क इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग, और हमें निकालना है वर्क डन बाय द इंजन।
that is nothing but work done by the system. So what will be total work done by the engine in cycle? W total by the engine will be equal to negative of total work done by the surrounding. Hence it will be equal to Q total. Okay. अब अगर एफिशिएंसी के फॉर्मूले में तुम ये सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू टोटल हीट ऑफ द साइकिल एंड हीट गिवन टू द इंजन इज, जब हम हीट सिस्टम को देते हैं उस हीट को हम पॉजिटिव हीट कहते हैं. तो हीट गिवन टू द इंजन इज Q पॉजिटिव. तो Q टोटल अपॉन Q पॉजिटिव क्या हो जाएगा? Q टोटल क्या होगा? टोटल हीट ऑफ साइकिल क्या होगी? साइकिल की पॉजिटिव हीट प्लस साइकिल की नेगेटिव हीट. तो एफिशिएंसी क्या आ गई किसी भी इंजन की? 1 प्लस Q नेगेटिव अपॉन Q पॉजिटिव. ये किसी भी इंजन की एफिशिएंसी आ गई. ओके. नोट करो इसका. सर हम लोग जो क्यू पॉजिटिव दे रहे होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा वो साइक्लिक प्रोसेस का क्यू पॉजिटिव का. मतलब यार हम जो इंजन को हीट देंगे वो Q पॉजिटिव होगा, जो इंजन हमें हीट वापस देगा वो Q नेगेटिव होगा. ओके सर, थैंक यू. कर लिया नोट? सर आपने कहा सर हीट से वर्क नहीं किया जा सकता सर, मगर हीट इंजन तो कर रहा है ना सर वर्क. हीट से वर्क अपने आप कन्वर्ट नहीं होता है, हमें एक डिवाइस बनानी पड़ेगी जो हीट अच्छा. को वर्क में करे. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके चलो आगे. तो एक इंजन हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल. कार्नोट इंजन. कार्नोट इंजन का की स्पेशलिटी है या इम्पोर्टेंस है that Carnot engine is the most efficient engine we can do. Okay. तो Carnot engine में क्या होता है?
Carnot engine is a 4-step cyclic process. और अगर पीवी एक्सिस पे इसका ग्राफ बनाए तो कार्नोट इंजन का ग्राफ will be somewhat like this. It consists of 4 steps. फोर स्टेप की साइकिल है. In this cycle, process AB is a isothermal expansion. Isothermal expansion. Process BC is a adiabatic expansion. Process CD is again a isothermal process. So process CD is a isothermal compression. And process DA is similarly a adiabatic compression. Okay. So Carnot engine is a cyclic process consisting of 2 isotherms and 2 adiabats. Correct? AB and CD are isothermal, BC and DA are adiabatic. तो मान लो प्रोसेस AB आइसोथर्मल है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है. मान लो प्रोसेस AB पे टेम्परेचर है T1 और सिमिलरली प्रोसेस CD भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, मान लो उस पे टेम्परेचर है T2. ओके. अब अगर मैं हर स्टेप की हीट लिख दूं तो व्हाट विल बी हीट ऑफ प्रोसेस AB? What will be heat of process AB, isothermal process की heat? N R T1 ln VB by VA. ठीक है. Process BC is adiabatic. So what will be heat of process BC? Adiabatic process की heat 0. What will be heat of process CD? CD फिर से आइसोथर्मल है, क्या हीट होगी? N R T2 ln PD by BC. और DA प्रोसेस की हीट क्या होगी? फिर से adiabatic 0.
Now, process AB is an expansion process. Volume of B is greater than A. So VB by VA will be a fraction greater than 1. So log of VB by VA will definitely be positive. So QAB is definitely greater than 0. And similarly, CD is a compression process. So volume at D will be lesser than volume at C. So VD by VC will be a fraction lesser than 1. So ln of VD by VC will be definitely negative. So QCD is definitely less than 0. Okay. Now, how we defined efficiency previously? Efficiency was defined as 1 plus Q negative upon Q positive. तो अब अगर यहाँ हम एफिशिएंसी लिखते हैं तो क्या होगी एफिशिएंसी 1 प्लस Q नेगेटिव नेगेटिव हीट्स कौन सी हैं इस प्रोसेस में नेगेटिव हीट इस प्रोसेस में है QCD तो 1 प्लस nRT2 ln VD by VC अपॉन Q पॉजिटिव पॉजिटिव हीट कौन सी है साइकिल में AB तो nRT1 ln VB by VA nR cancels out यहाँ तक क्लियर है चलो नोट करो इतना give me 2 minutes Okay, now DC is reversible adiabatic process. For reversible adiabatic process, we know the process equation is TV raised to gamma minus 1 is a constant. तो अगर वो प्रोसेस इक्वेशन लगाए तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन हम लोग DC के लिए V पे टेम्परेचर है T1 into VB raised to gamma minus 1 C पे टेम्परेचर है T2 into VC raised to gamma minus 1 सिमिलरली DA पे भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन लेना है तो A पे टेम्परेचर है T1 VA raised to gamma minus 1 और D पे टेम्परेचर है T2 VD raised to gamma minus 1 अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर ले तो देखो T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा और फिर पूरी इक्वेशन का गामा माइनस 1 रूट ले ले तो क्या मिल जाएगा VB अपॉन VA
is equal to VC upon VD. Clear है? Is this clear to everybody? So VB by VA is equal to VC by VD. तो ये दोनों लॉन की टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी, गिविंग अस अ -1. तो क्या इक्वेशन आ गई एफिशिएंसी की? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1. करेक्ट? तो अब देखो, अगर हमें 100% एफिशिएंसी चाहिए, for 100% efficiency T2 should be 0. For 100% efficiency T2 should be 0, and achieving 0 Kelvin is not possible. So by this Carnot said it is not possible to convert heat completely to work in a cyclic process. Yeah, in other words, it is not possible to construct a 100% efficient engine. और एक important significance यहाँ से जो देख सकते हैं, that is T1 क्या है? What is T1? T1 is the temperature of process AB. AB कैसा process है? AB प्रोसेस में हीट पॉजिटिव है, मतलब AB प्रोसेस में सराउंडिंग इज गिविंग हीट टू द सिस्टम. करेक्ट? नोट करो इतना.
हाँ यस, बोलो अब क्या डाउट है? कुछ डाउट है किसी को? हाँ बोलो नीलय। सर हाँ, एब्सोल्यूट जीरो अचीवेबल क्यों नहीं है? एब्सोल्यूट जीरो केल्विन कहाँ अचीवेबल होता है? सर क्यों नहीं होता अचीवेबल? कैसे अचीव करोगे? सर प्रेशर कम करके, टेम्परेचर कम करके। टेम्परेचर किस चीज से कम करोगे? टेम्परेचर कम करने के लिए उससे कोल्डर एक कोई बॉडी चाहिए ना, हाँ सर, तो जीरो केल्विन तक कैसे लाओगे? इसलिए अचीवेबल नहीं है सर। यस, तो आपने बोला था कि कार्नोट इंजन सबसे एफिशिएंट होता है। बाद में करेंगे, वो प्रूव करेंगे व्हाई कार्नोट इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। ओके सर। हाँ, तो यहाँ इसके आगे अब एक जो पॉइंट हम लोग और देख सकते हैं, T1 कौन सा टेम्परेचर था? T1 was the temperature of process AB. AB प्रोसेस में Q is positive, मतलब heat is going from the surrounding, heat is going from the surrounding to the system. Correct? If heat is going from the surrounding to the system, मतलब सिस्टम की सराउंडिंग में कोई एक हॉट सोर्स है हीट का, जो कंटिन्यूअसली सिस्टम को एनर्जी, हीट एनर्जी दे रहा है। तो T1 is nothing but that temperature of that source. Correct? तो T1 को I can write T source, और T2 क्या है? T2 is temperature of प्रोसेस CD. प्रोसेस CD में हीट नेगेटिव है। हीट नेगेटिव का मतलब सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है, मतलब सराउंडिंग में कुछ ऐसा कोल्ड सिंक है जो सिस्टम की हीट ले रहा है। तो T2 is temperature of that sink. So how can we give efficiency of any Carnot engine? Efficiency of any Carnot engine can be given as 1 minus T sink upon T source. करेक्ट? तो अब अगर इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए? इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो टी सिंक जितना कम हो उतना अच्छा है, और टी सोर्स जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। करेक्ट? टी सिंक जितना कम हो उतना अच्छा है, टी सोर्स जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो। अच्छा एक बार प्रीवियस पेज पे जाएंगे सर। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि सर ये क्यू टोटल में हम लोग क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव है ना, सब सिस्टम के सराउंडिंग में जाएगा ना क्यू टोटल में? अरे क्यू टोटल है पूरे प्रोसेस में जितने स्टेप्स हो रहे हैं उन सबकी हीट का टोटल। अच्छा, जो प्रोवाइड किया वो भी गिनना है? और क्या, सारे क्यू टोटल मतलब उस पूरे स्टेप की, पूरे सारे प्रोसेसेस की हीट्स का टोटल। अच्छा ओके ओके सर, थैंक यू।
हो गया नोट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन लो। ऑटोमोबाइल इंजन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ हीट इंजन। अब ऑटोमोबाइल इंजन में व्हाट इज सोर्स? कैन यू टेल मी व्हाट इज सोर्स ऑफ हीट इन ऑटोमोबाइल इंजन? यस जय। Sir, burning of petrol or like the gas. यस, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, जो जिस टेम्परेचर पे बर्न होके प्रोड्यूस कर रहा है वो हो गया सोर्स ऑफ हीट, टी सोर्स। व्हाट इज सिंक? Sir, वो that water which like the water of the engine oil. नहीं नहीं, that is not the sink. That is coolant. Sink is exhaust. Okay. ओके, तो टी सिंक क्या हुआ? सिंक क्या है? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट कहाँ जा रही है? एटमॉस्फियर में। तो टी सिंक हुआ एटमॉस्फियर का टेम्परेचर, करेक्ट? तो यू नो ऑटोमोबाइल इंजन, कार इंजन रात को ज्यादा एफिशिएंसी देते हैं एज कंपेयर टू डे। द रीजन इज टी सिंक इज लोअर। ओके, Sir, sink is the medium which absorbs the heat from the source, Yes. right? यस। Okay, sir. बोलो जय। सर आपने ऑटोमोबाइल इंजन का एग्जांपल दिया, पर ऑटोमोबाइल इंजन कार्नोट्स इंजन थोड़ी है। कार्नोट इंजन नहीं है तो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, लेकिन इस फॉर्मूले का फॉर्मेट तो यही रहेगा। हाँ यस सर। मतलब टी सिंक और टी सोर्स के साथ कुछ और नंबर, कुछ फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होंगे। हाँ यस सर। फॉर्मेट तो ऐसा ही रहेगा ना किसी भी इंजन का। हाँ यस सर, गॉट इट, समझा। तो ये रीजन है कि ट्रक्स रात को फ्लाई करते हैं रोड पे। हाँ यस, ये रीजन है कि ट्रक ड्राइवर रात को ज्यादा ड्राइव करते हैं। एंड सर अगर कंप्रेशन होगा तो फिर टी सिंक में ज्यादा एफिशिएंसी की। कंप्रेशन नहीं करोगे तो साइकिल कैसे बनेगी? पार्डन सर? साइकिल बनानी है ना तो कंप्रेशन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। एक्सपेंशन कर दिया तो फिर कंप्रेशन तो करना ही पड़ेगा, वरना साइकिल नहीं बनेगी। ओके ओके सर, थैंक यू। सर आप ये सिंक और सोर्स एक बार वापस समझा सकते हो? भाई देखो, ये मेरे पास एक इंजन, ठीक है, ये इंजन। हाँ सर। इसमें क्या करना है इस इंजन से, बताओ तुम बताओ, इस इंजन का यूज क्या है हमारे लिए? हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, करेक्ट? हाँ सर। तो तुम इस इंजन को हीट दोगे कहीं से? हाँ सर। कहाँ से हीट दोगे? सराउंडिंग। तुम्हारे पास सराउंडिंग से तो दोगे, हाँ। लेकिन जिस भी चीज से दोगे वो एक सोर्स ऑफ हीट होना चाहिए ना, मतलब उसके पास बहुत सारी हीट होनी चाहिए देने के लिए इसको। हाँ सर। तो एक सोर्स होगा जिससे तुम हीट दोगे, करेक्ट? हाँ सर। तो ये जो हीट तुम काउंट करोगे इसको पॉजिटिव हीट की तरह काउंट करोगे ना। हाँ सर। तो भाई यहाँ इस कार्नोट इंजन में एबी का हीट पॉजिटिव थी। यस सर। मतलब एबी प्रोसेस के सोर्स ऑफ हीट से इंजन को हीट आ रही है। यस सर। मतलब एबी प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो सोर्स का टेम्परेचर है। हाँ सर। अब ये सोर्स को इंजन को हीट मिल गई, अब इंजन इस हीट का क्या करेगा बताओ? इंजन इस हीट का क्या करेगा, इस एनर्जी का क्या करेगा बताओ सवेल? What will engine do of this heat? बोलो इधर। करेगा क्या करेगा? वर्क वर्क में Work. कन्वर्ट करेगा, करेक्ट? अब इसको जितनी भी ये हीट मिली ये उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो इसका कुछ पार्ट तो वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा।
अब बचे हुए पार्ट का क्या करें? तो बचे हुए पार्ट को ये इंजन वापस हीट की तरह बाहर फेंक देगा। अब ये जब बाहर फेंकेगा तो किसी को ये हीट लेनी पड़ेगी, और हीट कौन लेगा? कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूअस हीट लेने को रेडी हो। कितनी भी हीट तो हम लेते रहेंगे, तो हीट लेनी पड़ेगी किसी सिंक ऑफ हीट को। तो जिस प्रोसेस में Q नेगेटिव होगा, मतलब इंजन हीट दे रहा है बाहर, वो हीट किसको जाएगी? सिंक को। तो वो प्रोसेस किस टेम्परेचर पे होगा? सिंक के टेम्परेचर पे। क्लियर? सोर्स और सिंक क्या होते हैं, समझ में आया? कार्नोट इंजन का हो गया पूरा नोट। बोलो देवेश। हाँ सर, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखेंगे कि क्यू नेगेटिव तो आएगा ही आएगा बाहर इंजन से, लेकिन हाँ वो फिर सिंक का टेंडेंसी होगा ना कि उसको कितना लेना है। अगर ज्यादा टेंडेंसी तो ज्यादा क्यू नेगेटिव लेगा, लेकिन वो इंजन तो उतना। एक मिनट, लिसन। सिंक और सोर्स, ये जो वर्ड्स है ना, सोर्स का मतलब क्या है? इसके पास कितनी हीट है? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हीट सप्लाई कर सकता है और ये इनफाइनाइट हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके? अच्छा, तो सोर्स और सिंक वर्ड्स का मतलब ही यही है कि दे आर इनफाइनाइट सोर्स एंड इनफाइनाइट सिंक ऑफ हीट। ठीक है सर। सर तो फिर हमें ठंडी में ज्यादा सोच लेना है, क्योंकि इंजन ठंडा हो जाता है तो इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा ताकि ठंड लेकिन कवर कर दे वो। में एवरेज ज्यादा देगा एक ऑटोमोबाइल इंजन। पार्डन सर? The efficiency, the average of automobile engine increases in winter. हाँ। ओके, चलो एक चीज और निकालते हैं इस साइकिल के लिए। लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस साइकिल द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब पूरी साइकिल पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। पूरी साइकिल पे इंटीग्रेट करेंगे। साइकिल में 4 स्टेप्स है, मतलब चारों स्टेप पे इसका इंटीग्रल करके ऐड करेंगे। तो दैट विल बी इंटीग्रल dq by t going from a to b plus इंटीग्रल dq by t going from b to c plus integral dq by t going from c to d plus integral dq by t going from d to a। तो A to B आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और क्या है उस प्रोसेस का? T1। तो 1 बाई T1 इंटीग्रल A to B dq। BC के लिए तो हीट 0 है, तो dq ही 0 हो गया। CD के लिए 1 बाई T2 इंटीग्रल C to D dq। और DA के लिए फिर एडियाबैटिक है, dq ही 0 है। तो ये मिल गया QAB अपॉन T1 प्लस QCD अपॉन T2। QAB और QCD की वैल्यू रखते हैं, तो NR LN VB by VA
plus NRLN VD by VC. और BA by BB, BB by BA is equal to BC by VD. वो अप्लाई करेंगे तो क्या आ गया इसका रिजल्ट? That cyclic integral of dq by t is 0. और इसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या निकला? किसी भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल 0 है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इट? कैन एनीबॉडी टेल? इस इंटीग्रल का क्या इंपॉर्टेंस है? बोलो मनस। सर वो स्टेट फंक्शन होगा। Yes, that dq by t is change, किसी स्टेट फंक्शन का चेंज है, change of a state function. तो एक नया स्टेट फंक्शन मिल गया हमें। नोट करो इसका। So this state function we call as entropy. So from here we bring in entropy. Which we will denote by S. कैसे मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं एंट्रोपी को? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल upon t. It is a state function. And the main significance of this is that entropy of a system is measure of entropy is measure of randomness. Okay. तो देखो सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, उस चीज का मेजर है एंट्रोपी। ओके, नोट करो।
सर वो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वो क्यू बाई टी लेना मतलब वो सेम है लाइक साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा यू ऑलवेज जीरो होता है वैसा। तो why it is same as delta u? नहीं मतलब लाइक सिमिलर। हाँ मतलब देखो हमें ये रूल मालूम है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ e of any state function is always zero. हाँ यस सर। ओके हाँ ओके सर। सर ये मेजर और रैंडमनेस का मतलब क्या है, सर नहीं समझा। सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है उसका मेजर, मतलब जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है वो ज्यादा रैंडम है सिस्टम, ज्यादा डिसऑर्डरनेस है उस सिस्टम में। हाँ सर, वो रेव्स क्या होता है क्यू के नीचे? रिवर्सिबल, डीक्यू रिवर्सिबल। ओके सर थैंक यू सर, समझ गया। मैथमेटिकली रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर को कैसे डिफाइन किया? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को डिफाइन किया है नंबर ऑफ प्रोबेबल केसेस से। नहीं समझा सर। मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है? यस सर। उसमें देयर आर 9 seats, correct? Yes sir. And 5 students have to come in this classroom and sit. Okay? Okay sir. Now when the teacher enters in this classroom, what are the, where he can find the student sitting, which student sitting there? उसके कितने प्रोबेबल केसेस है निकाल सकते हो? यस सर। तो वो जितने केसेस है उतनी इस सिस्टम की रैंडमनेस है, क्योंकि टीचर को क्लास के में आने से पहले उतनी पॉसिबल सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन मिल सकती है, करेक्ट? यस सर। दैट इज द रैंडमनेस, दैट इज द अनश्योरिटी अबाउट दिस सिस्टम। Yes sir. Yes sir. The number of possible arrangements. Okay. Okay sir. सर और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ये रैंडमनेस क्या होगा? मतलब वो क्लास में तो समझ गया। नहीं अभी सब क्लास में क्या सब चीजों में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। पहले तो ये समझना है, चलो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, मैं सबको अनम्यूट खुद से करने की परमिशन दे रहा हूँ, मिसबिहेव मत करना कोई। हाँ, which way is more stable, ordered way or random way? Ordered way. तो इस पे मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मान लो एक जगह पे, सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। नहीं सर आ रही है बराबर आ रही अच्छा ठीक है। तो एक जगह पे मान लो 10 people are standing, ठीक है? They are suddenly asked to walk. How will they move? How will they walk? रैंडमली सर। नीड डायरेक्शन। हाँ सर। मतलब सब क्या मार्च पास करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में सब बिल्कुल सीधे सीधे? नहीं सर। नहीं। सब कोई कहीं चलेगा, कोई फास्ट चलेगा, कोई स्लो चलेगा, रैंडमली चलेंगे ना? यस सर। यस सर। तो कौन सी चीज स्टेबल हुई, रैंडम की ऑर्डर? रैंडम।
भाई जो चीज स्टेबल है वो खुद से होती है, अनस्टेबल चीजों को हमें जबरदस्ती कराना पड़ता है। इन 10 लोगों को मार्च पास करानी है, बिल्कुल बराबर से ऑर्डरली मूव कराना है, तो इनको बहुत प्रैक्टिस कराना पड़ेगा कई दिन। वो ऑर्डर्ड मोशन के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है, रैंडम मोशन स्पॉन्टेनियस है। जस्ट 1 मिनट। Yes. So, which is now more stable, random or ordered? Random. Random. Order most stable, na? You can see in any phenomena of nature which occurs on its own, you will find randomness. Okay? So randomness is the favored thing. तो ये अब हमें देता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या कंडीशन ऑफ फीजिबिलिटी, कि केवल इस यूनिवर्स में वही चीजें होती है, वही प्रोसेसेस होते हैं जिसमें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर दैन 0। तो ऐसा कोई प्रोसेस है तो वो कैसा प्रोसेस होगा? बड़ा फास्ट प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, अपने आप हो जाएगा। बस तुमने उन दो रिएक्टेंट्स को मिलाया, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। अगर तुम ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो है, मतलब वो रिवर्सिबल होगा, इनफाइनाइटली स्लोली चलेगा। या रिएक्शन के वे में हम कहेंगे रिएक्शन विल बी इन
इक्विलिब्रियम। और ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन 0 नेगेटिव है, एंट्रोपी कम हो रही है यूनिवर्स की। ऐसा कोई काम कभी कर ही नहीं पाओगे। Any such thing will never happen in which entropy of universe is decreasing. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या तो ऐसे लिख सकते हैं, या स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is always increasing. या कार्नोट का स्टेटमेंट जो है सेकेंड लॉ का वो भी लिख सकते हैं। कार्नोट स्टेटमेंट क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल to convert heat completely to work in a cyclic process. तो ये सब स्टेटमेंट्स हैं सेकेंड लॉ के। देखो तीसरा स्टेटमेंट भी रैंडमनेस वाला ही स्टेटमेंट है। हीट क्या करती है? increases randomness. अगर मैंने एक सिस्टम को हीट दी क्या होगा? इस हीट से रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, मोशन मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा। Yes, sir. तो हीट इज द एनर्जी रिलेटेड विद रैंडम मोशन। Yes, sir. यस सर। वर्क कब होता है? जो हीट देते हैं, जब कोई पिस्टन ऐसे मूव करे। Yes, sir. पिस्टन ऐसे मूव करेगा मतलब सब मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही मूव करना पड़ेगा। Yes, sir. तो वर्क किससे रिलेटेड है? ऑर्डर्ड मोशन से। Yes, sir. तो हमने क्या देखा था आज क्लास की स्टार्टिंग में? वर्क हीट बन सकता है लेकिन हीट वर्क नहीं बन सकता है। रैंडम एनर्जी को ऑर्डर्ड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। रैंडमनेस कम नहीं कर पाएंगे हम किसी भी सिस्टम की। ऑर्डर्ड को रैंडम कर सकते हैं, रैंडम को ऑर्डर्ड नहीं कर सकते। सर रैंडम को ऑर्डर एक पर्टिकुलर एक्सटेंड तक कर पाएंगे ना? नहीं, अगर तुम एक सिस्टम की रैंडमनेस कम कर रहे हो, सुनो, हाँ सर, तो सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ेगी और सराउंडिंग की रैंडमनेस का जो इंक्रीज है वो सिस्टम की उसको काउंटर बैलेंस कर देगा, ज्यादा होगा। ओके सर, समझ गया। डेल्टा एस यूनिवर्स हैज टू बी पॉजिटिव। एक एग्जांपल देखते हैं इसी फीजिबिलिटी का। एक एग्जांपल देखते हैं, इससे समझ में आएगा। मान लो दो बॉडीज है मेरे पास, सेम मटेरियल की, सेम मास की दो बॉडीज है, ठीक है। एक का टेम्परेचर है TH, एक का टेम्परेचर है TC, ठीक है। TH इज ग्रेटर देन TC। एक हॉटर बॉडी है, एक कोल्डर बॉडी है, ठीक है।
अब अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में ले आऊं तो क्या होगा बताओ जरा। Heat will flow from hotter to colder. Equilibrium. body. हीट विल फ्लो कहाँ से कहाँ? Hotter to colder body. नहीं, मुझे फ्लो करानी है हीट को मुझे फ्लो कराना है फ्रॉम कोल्डर बॉडी कोल्डर टू हॉटर बॉडी। देखते हैं करा के। तो मैं कहता हूं कोल्डर से हॉटर बॉडी में कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये बताओ कोल्डर बॉडी के लिए हीट को मैं कैसे लिखूंगा? -Q. -Q, क्योंकि इससे चली गई। और हॉटर बॉडी के लिए +Q. तो कोल्डर बॉडी का एंट्रोपी चेंज कितना हुआ? एंट्रोपी चेंज कैसे दे रहा है देखो, -Q/Tc। तो कोल्डर बॉडी के लिए हुआ -Q/Tc और हॉटर बॉडी के लिए एंट्रोपी चेंज हुआ +Q/Tc। TH पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या हुआ? दिस प्लस दिस। Yes, sir. That will be Q taken common 1/TH -1/Tc लेस देन 0 है। लेस देन 0 हो जाएगा। Less than 0. ये काम नहीं होगा। प्रूफ कर दिया तुमने, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो इस तरह कोई भी नेचुरल चीज जो हो रही है, वी कैन प्रूव नाउ बाय थर्मोडायनेमिक्स कि अगर वो हो रही है स्पॉन्टेनियली तो उसमें डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा। जिन कामों में डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव है वो काम हो ही नहीं सकते। Is this much clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. सर एक Yes, डाउट sir. यहाँ पे एक छोटा सा डाउट था। है कि डेल्टा एस यूनिवर्स आपने कहा नेगेटिव होगा, तो सर मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स अगर नेगेटिव होगा तो खुद से नहीं हो सकता है ना, कोई डिवाइस लगा के तो करवा सकते हैं। तो वो डिवाइस लगाओगे तो उस डिवाइस की एंट्रोपी इतनी बढ़ेगी, समझ लो, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, कि ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा। मतलब कि जो भी ये सर सेकेंड लॉ सिर्फ कोई भी चीज खुद से हो सकती है उसके बारे में, कि किसी भी कोई भी चीज हो सकती है कि नहीं, चाहे वो खुद से हो चाहे किसी डिवाइस से करना, हाँ। दोनों डेल्टा एस यूनिवर्स पे ही डिपेंड करेगी। हाँ, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव करना ही पड़ेगा तुम्हें कुछ ही काम को करने के लिए। सर ये प्रूफ कैसे किया था, मतलब कि डेल्टा एस यूनिवर्स अगर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज प्रूव नहीं होते हैं, वो ऑब्जर्वेशनल लॉज है। अच्छा, हमने जितना यूनिवर्स ऑब्जर्व किया है उसमें ये फॉलो हो रहा है। ओके सर, क्लियर है यहाँ तक एंट्रोपी की डेफिनेशन? यस यस सर। सर ये लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। सर तो फिर सेकंड लॉ के कारण ही हमें कोई ऐसा 100% एनर्जी सोर्स नहीं मिल पाया, राइट? कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, ऐसा कोई 100% वो नहीं है। यस, ओके सर। चलो तो वी विल स्टॉप। बट एंट्रोपी के रैंडमनेस का हम फॉर्मुलेशन कैसे किए सर? जिस फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते। आई हैव नॉट सेड एंट्रोपी इज randomness. What I have written, please pay attention. It is a measure of randomness. I can't tell you a formula correlating entropy and randomness. ऐसा फॉर्मूला मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। It is a measure of randomness. मतलब अगर दो बॉडीज की एंट्रोपी मुझे बताई जाए तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है उसकी रैंडमनेस ज्यादा है। ओके?
यस सर। सर एक और डाउट है सर, जैसे हम लोग डेल्टा यू में सिर्फ चेंज कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी सिर्फ चेंज कैलकुलेट करेंगे? नहीं, एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट होगी। सर लास्ट पेज बताइए ना। थर्ड लॉ में कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू। हेलो सर, मुझे एक छोटा सा डाउट था। जब आपने वो ऑर्डर्ड पेयर वर्सेस रैंडम में कंपेयर किया, मुझे एक्चुअली वो समझ में नहीं आया कि वो रैंडम प्रोसेस इज मोर स्टेबल देन ऑर्डर्ड प्रोसेस। वो ये आप ऐसे देखो कि हम जो नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो चीजें हो रही है जो रैंडमनेस है, जो रैंडम है। पर सर हमने मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में जीओसी में तो बोला था सिमेट्री जितना ज्यादा होगा उतना वो जितना ऑर्डर होगा उतना स्टेबल होता है कंपाउंड, पर इसमें इसका उल्टा क्यों हो रहा है? नहीं, इसमें उल्टा नहीं हो रहा। और जीओसी में भी कभी सर ने ये नहीं बोला होगा, तुमने उसको गलत वे में लिया है, तो पूछ लेना जीओसी ऑर्गेनिक में कि सर क्या रैंडमनेस कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है? यू कैन आस्क दैट। ओके, नाउ लिसन, just take a few examples of nature. You pluck 100 leaves from a tree. Okay? Yes, sir. You will never find 2 leaves exactly same. In all ways, you will never find 2 leaves all exactly same. उनके शेप, साइज, किसी ना किसी चीज में डिफरेंस होगा। That is randomness. तो नेचर में जो भी प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, they all prefer randomness. They all move towards more random state. Okay? सर ये रैंडमनेस की वजह से मतलब रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है? हाँ, delocalization of electron. Localized electron is ordered. Delocalized electron is random. सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतने ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी और उतने ज्यादा आउटकम्स होंगे तो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। Yes. सर तो ये रीजन कह सकते हैं ना कि रैंडमनेस मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ऑर्डर करने में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसके कारण स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। सर आपने एक बच्चे ने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था Here है सारे डाउट? हाँ सर। सर आप एक बार ये फोटोज भेज देंगे ग्रुप पे? रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना। नहीं सर, लास्ट 2 पेजेस बाकी है नोट करने। 2 पेज में क्या है? तो ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये वाला नहीं सर, उस पेज पे जिधर आपने एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स वो जिधर आपने लिखा। हाँ सर, ये वाला। एक मिनट सर, नोट ले लेना अभी। और सर वो वाला वो कोल्डर टू हॉटर। थैंक यू सर। चलो विल स्टॉप हियर। बोलो दर्शक। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। सर बोलो। सर एक छोटा सा डाउट था सर, ये रैंडमनेस से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो फिर वो एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? यार तुम केवल एक चीज ऐसे नहीं है, एनर्जी, एंट्रोपी, कई चीजें लगती है, स्टेबिलिटी चाहिए पूरी। ओके सर। सर आप dq/t का एक्सप्रेशन कैसे आया, आप एक बार बता सकते हैं? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अब आगे। ओके ओके, यस ओके।